morning, students. This is Ashwani Singh, and I am the science teacher of the Radiant School. And today I am here standing to teach you the chapter electricity. And this chapter is related from class 10. Today I will throw light on electricity, but I will not use this energy for throwing the light, because this light will be full of knowledge, and all the knowledge will be related from particularly this chapter. So now let's come on our point, let's come on our topic. See, one of the major factors is that, first of all, before starting this chapter, let's observe or let's feel the importance of electricity. In today's world, I don't think so, or you also don't think so, that it's possible that we can live without this particular source of energy, which is known as electricity. You need electricity in your homes also, and the electricity is needed for the industries also. So, in today's life, electricity plays a vital role in our life. So, now you know the importance of electricity. Now our second point is that as soon as this term strikes our mind, that importance of electricity or the word electricity, when we used to think this word, a question arises in our mind. And the question is, what causes electricity? What is the reason behind this particular form of energy which name is electricity? So, electricity is the cause of the charges. Electricity is the cause of the charges. Only charges are responsible for this particular form of energy which is known as electricity. Now, my dear students, I think that I have taught you. Now remember those periods of chemistry. I have taught you atoms. You know that atom is the smallest particle of a substance. Now, just join my hand and just let's enter inside the atom. Inside the atom, what I have taught you, or what you have learned here from your textbook, you have learned that inside the atom there are the three types of particles which are known as electrons, protons and neutrons. Now, electron has negative charge, proton has positive charge, and since you know that in an atom, the number of electron and the number of proton is equal to each other. So this is the reason that an atom is neutral, and so there is one more charge which is known as neutron, and the neutron has no charge in it, and the atom is electrically neutral. The surcharge electron is equal to the surcharge of proton. Now, जैसा कि मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है और बार बार पढ़ाया है, और देखिए टहनियाँ हज़ार हैं, जड़ एक ही है. कोशिश करता हूँ कि आपको जड़ पकड़ा दूँ, टहनियों को छोड़ दीजिए. बात क्या है यहाँ पे कि साइंस बार बार एक ही काम करता है. वो एक चीज़ को डिवाइड करता है और फिर उसको डिफाइन करता है, लेकिन इतना याद रखिएगा, डिवीज़न का कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न रहता जरूर है. वो बिना पॉइंट के तो डिवाइड करने वाला है नहीं, कुछ पॉइंट तो जरूर है उस डिवीज़न के पीछे. और अगर हमने ये आपको बताया कि चार्जेस यहाँ पे नेगेटिव भी आए हैं और चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव भी आए हैं, तो जो दो तरह के चार्जेस हैं इनकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, और उन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पे इनको बांटा गया है. इनका अपना गुण होगा, तो आखिर वो कैसा गुण हो सकता है? व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज प्रॉपर्टीज, एंड दीज प्रॉपर्टीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू. सी, यू हैव लर्न इन योर जूनियर क्लासेस दैट लाइक चार्जेस plus repel each other, and you have also learned that unlike charges attract each other. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. Now, can I ask from you, what is attraction and what is repulsion? When they attract, that is known as attraction, and when they repulse, that is known as repulsion. Now, there is one depth point also. Repulsion means the body moves outward, and the attraction means the body moves inward. जब रिपल्सन होगा तो बॉडी बाहर की तरफ भागेगी, वो एक दूसरे की तरफ कभी भी नहीं आने वाली, अंदर की तरफ. लेकिन जब अट्रैक्शन होगा तो बॉडी अंदर की ही तरफ आती है.
तो मेरा उम्मीद है कि आप चार्जेस को समझे होंगे और नेचर ऑफ चार्ज भी आप समझ गए होंगे कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और ये दो अलग अलग चार्जेस के चलते अट्रैक्शन का फोर्स होता है, और डिफरेंट और सेम चार्जेस अगर रहेंगे तो यहाँ पे रिपल्सन होता है, और डिफरेंट होगा तो अट्रैक्शन होगा। चलिए, तो अब हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही पुराने ज़माने से एक एग्जाम्पल रिलेट करते हैं, और जाहिर सी बात है कि बचपन में हमने भी वो काम किया है और आपने भी वो काम किया ही होगा। स्टूडेंट्स, नाउ रिमेंबर दोज डेज व्हेन you were holding a comb in your hand and there were some small pieces of the paper scattered in front of you. Now when at that time you had brought that comb just near about that pieces of the paper, what you had observed that there was no attraction, there was no repulsion between the comb and the bits of the paper. But as soon as you just started that comb and you just rubbed against your hair, and after when you rubbed against your hair that particular comb, and after rubbing, when you brought that comb just near about the bits of the paper, what you felt there, what you observed there? Your observation was that the paper which was not getting attracted towards the comb, now it has started to get attracted towards the comb. अब वो अट्रैक्ट होना शुरू हो गई। वो कंघी थी प्लास्टिक की, वो मैग्नेट नहीं है। तो आखिर ये चार्ज डेवलप कहाँ से हुआ, ये कैसे हुआ आखिर उनमें? सोचिए इस बात को। रीजन बस यही था कि यहां पे ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हुआ है, तब जाके पेपर अट्रैक्ट हुआ, और दोनों चार्जेस अनलाइक थे। तो ये चार्जेस आखिर अट्रैक्ट कहां से हुए, ये चार्जेस उसमें पैदा कहां से हुआ है? तो जाहिर सी बात है, जब कंघी आपने अपने बालों में रगड़ी थी, क्योंकि पेपर तो पहले भी वहीं पे था और नज़दीक ले जाने के बाद भी वो वहीं पे है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उस कॉम में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। तो अब एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे बात कर ली जाए आपको कि पहले हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं एक बार। ये पॉइंट बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, कि क्योंकि ये पॉइंट रिलेटेड है इसी एग्जांपल से, इसलिए आइए हम पहले इस पॉइंट पे उतरते हैं। तो पॉइंट हमारा ये है कि हाउ डज द बॉडी एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे भी हमने कहा कि अपने बालों में रगड़ा तो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कॉम। तो आखिर ऐसा क्या है और क्यों है ये? अगर ये होता क्या है कि एक बॉडी चार्ज हो जाती है कि पॉजिटिव और एक बॉडी चार्ज हो जाती है नेगेटिव, और एक समय ऐसा भी था कि जब कोई चार्ज मौजूद ही नहीं था। तो याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। चार्जेस के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो है वो मात्र एक चार्ज पार्टिकल, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन। क्यों? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ही होता है। जूनियर क्लासेस के स्टेप्स को याद करिए। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बंद रहते हैं और वो मूव नहीं करते हैं। ऑर्बिट्स के अंदर जो मूव करते हैं वो चार्ज पार्टिकल का नाम होता है इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या यहां पे समझिए, जब आपने रब किया तो हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, चलिए हम इससे समझते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है ये दोनों एटम है, दोनों के दोनों एटम्स हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों न्यूट्रल है। लेकिन आपने रब कर लिया, तो रब करने से क्या हुआ कि जब ये न्यूट्रल है, यानी कि इस पे भी जीरो चार्ज था और इस पे भी जीरो चार्ज था, इस पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है और इस पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जब रब किया आप, तो ये तो कहीं भी मूव होने वाला सरचार्ज नहीं है प्रोटॉन, लेकिन मूव होने वाला चार्ज है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों बराबर थे, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ। और रब करने के बाद जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो अब देखिए पहले इसमें एक नेगेटिव चार्ज था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए तो इसमें अब दो नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है। इसका मतलब अब प्रोटॉन से ज्यादा संख्या किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हम कह सकते हैं कि नाउ the body A has acquired the charge which is known as positive, and the body B has acquired the charge which is known as negative. So now we can authentically define that the body A is positively charged and the body B is negatively charged, and it is due to transfer of electrons. ये electrons ही है जो बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आप करने के बारे में आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है या तो ये नेगेटिवली चार्ज है। बिना इलेक्ट्रॉन्स के ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मूव करने वाले चार्जेस वही हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस बात जरा पॉइंट करिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, कि मूव करने वाले चार्जेस यही है। अब आ जाते हैं हम व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी पे। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमने भी क्या बताया था आपको, ये एक चार्ज का रूप है। तो किस तरीके का चार्ज का रूप है?
Electricity is the flow of electron, and if the electricity is the flow of electron, then you can say that electricity is the flow of negative charges. I think that now the data has been quite clear in your mind. Now, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं अभी, जैसे कि मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी आपको डेफिनेशन दिया, तो आइए एक बार हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहला आ गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब तक पढ़िएगा तब तक याद रखिएगा, और ये बात बहुत जरूरी है आपके लिए। जरूरी क्या है इसमें, साइंस कभी भी रटने के लिए नहीं बोलता है, और साइंस के ऐसे बहुत ही वैल्यूबल वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को अगर आप बारीकी से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा मीनिंग उसके सामने आएंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, प्लीज़ इस इल्म को सीखिए, ये बहुत बड़ा हथियार है आपका। अब समझिए क्या है, स्टैटिक का मतलब ही होता है स्टेबल, और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज के रूप में डिफाइन करता हूँ, यानी कि ये वो चार्ज है जो स्टेबल है, और करंट का मतलब ही होता है धारा, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत की धारा। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज है, तो ये चार्ज की धारा है। ठीक है, तो धारा का काम क्या है बच्चों, मूव करते रहना। धारा कभी कैद नहीं रह सकती, वो मूव करते रहती है। तो यही अंतर है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस स्टेबल रहते हैं, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मूव करते रहते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये पॉइंट्स हमारा क्लियर हो चुका है कि हाउ डज द बॉडी रिक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और अब हम आ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज एंड यूनिट पे। ये बहुत बड़ा पैमाना है इसका। याद रखिएगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में आप बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, और फिजिकल क्वांटिटी होती कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी वही क्वांटिटी है जिसको कि आप मेजर कर सकते हैं, आप माप सकते हैं, और पूरे फिजिक्स में आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है कि फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो उन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास लेटर्स भी अलग अलग चाहिए। अगर हम एक ही लेटर से सबको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें तो जाहिर सी बात है कि आपके जहन में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर राहुल नाम का लड़का एक नहीं 50 हो जाए क्लास में, तो अगर एक राहुल को बुलाइए तो वो सब खड़े हो जाएंगे। तो दिक्कत यहाँ पे यही थी, इसलिए अब इसको याद रखिएगा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज है, यानी डिनोट करने का तरीका, तो जो डिनोट करने का लेटर है चार्ज को, तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। यहां पे लिखा हुआ भी है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, लेकिन चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। डिनोट करते हैं हम चार्ज को क्यू से, और यूनिट होता है इसका कूलम्ब। चलिए, अब हम कर रहे हैं मेजर ऑफ चार्ज। जाहिर सी बात है भाई, चार्ज है, चार्ज तो है, तो भाई इसके कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड होना ही है। तो आखिर कितना मैग्नीट्यूड हो सकता है, तो आइए आज हम देखते हैं इसको कि अब चार्ज का मतलब हो गया चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल कितने हैं आपके, दो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब तो ये बात आपको बतानी ही नहीं है कि जब एटम कंप्लीटली हम कह रहे हैं कि वो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जो चार्जेस होंगे वो दोनों पे बराबर होंगे। तो अब चार्जेस कितने हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कैपिटल C denotes, and here the C stands for the coulomb, और प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। क्या यहां पे कुछ छूट रहा है, छूट रहा है। अब बारीक बातों को कभी भी ध्यान में रखिएगा हमेशा, वरना उसके चलते जब भी होगा तो कुछ ब्लंडर होगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रोटॉन की, और अब हम यहाँ पे बात कर ले रहेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, और जो प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा पॉजिटिव होगा। और इसलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन अगर किसी एटम में अगर मौजूद है तो वो एटम न्यूट्रल इसलिए होता है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का उतना ही चार्ज प्रोटॉन का। तो उम्मीद है कि ये डाटा पर क्लियर होगा। अब हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ अगर फ्लो करती है, मान के चलिए अगर पानी फ्लो कर रहा है तो भाई उसको रास्ता तो दोगे, अगर रास्ता ही नहीं मिलेगा तो फिर वो फ्लो कहाँ से करेगा। तो अब इस इलेक्ट्रिक करंट यानी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब जाहिर सी बात है कि अब इसको फ्लो करना है, तो ये फ्लो होगी कहाँ से, कंडक्टर्स में।
फ्लो कहाँ नहीं हो सकती है? इन कंडक्टर्स में, ठीक है। तो पहले हम इन दो टॉपिक को समझते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बहुत जूनियर सेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी अगर पार्ट इस चैप्टर का तो एक बार डिटेल कर लेते हैं इसको कि कंडक्टर है क्या। कुछ भी नहीं है। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली, दैट इज नॉन एज कंडक्टर, एंड द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास इजीली, दैट इज नॉन एज इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टर में आप ले सकते हैं मेटल्स को, इंसुलेटर आप ले लीजिए प्लास्टिक को। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, जाहिर सी बात है उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए, लेकिन जो उसके अंदर का कंपोनेंट है उसमें मेटल्स का इस्तेमाल होता है, कॉपर की वाइंडिंग होती है, और कॉपर जो क्या है, मेटल है, ठीक है। और अब एक वर्ड आ रहा है इसमें, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आखिर है क्या? तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टर वही है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ जाए। तो कंडक्टिविटी क्या है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, दैट इज नॉन एज कंडक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, दैट इज नॉन एज कंडक्टिविटी। अब लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये राइज होता है हमारा कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो किसी एक सब्सटेंस को कंडक्टर बना देती है और किसी एक सब्सटेंस को इंसुलेटर बना देती है? कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। तो अब देखिए, एक बार जरा हम इस बात को कनेक्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री वाले पार्ट से, ठीक है। मेटल ही कंडक्टर क्यों आप मानते हैं? इसमें रीजन क्या है इसका? तो आपको मालूम है कि मात्र मेटल ही हैं जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि जो आखिरी ऑर्बिट में जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर्स होता है 1, 2 या 3। तो जाहिर सी बात है कि जो अगर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी ऑर्बिट्स की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है तो न्यूक्लियस के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स लगाया जाता है वो उतना कम होते जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर चले जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के सबसे आखिरी ऑर्बिट में होते हैं वही होते हैं उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का मेन रीजन है, क्योंकि एटम छोड़ करके अगर कोई बाहर निकलेगा तो वो यही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आखिरी ऑर्बिट में मौजूद होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कि ये जो 1, 2, 3 का जो पैमाना है, अगर 1, 2 या 3 अगर इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना पड़े तो एटम को कोई खासी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ये बड़े इत्मीनान से लूज कर देता है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम मेटल्स ही जो हैं हमारे सामने या हमारे इर्द गिर्द सबसे बेहतरीन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये पर्टिकुलर रीजन इंसुलेटर्स के साथ लागू नहीं होती है, ये कंडीशन उनके साथ लागू नहीं है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, और ऐसी क्या रीजन है जिसके चलते कि एक सब्सटेंस कंडक्टर बन जाता है। किसका बात हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन में बात करते हैं, अभी जरूरी है हमें इसका मतलब जानना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक साथ ना पढ़ के पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी, डिफरेंस का मतलब अंतर, यानी कि एबिलिटी में अंतर। जाहिर सी बात है जिसकी ज़्यादा एबिलिटी होगी वो ज़्यादा काम करेगा, जिसकी कम एबिलिटी होगी वो कम काम करेगा। अब इस बात को समझने के लिए अभी आपके सामने 3 अलग अलग तरीके की कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। पहले इस एग्जाम्पल आप समझिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल और भी आपके लिए, उसे भी हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 अलग अलग वेसल हैं, और जिसमें क्या है कि एक वेसल में पानी बहुत अच्छे से भरा हुआ है, एक में थोड़ा सा पानी का वॉल्यूम उससे कम है, और एक में बिल्कुल हम इक्वल पोजीशन पे है। आखिर इससे क्या समझाने की कोशिश हो रही है आपको? अगर आप तो वही समझते हैं इन एग्जाम्पल्स के द्वारा। थ्रू दिस एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल डिफरेंस। जाहिर सी बात है कि चार्जेस को मूव करवाने के लिए कोई आता नहीं है, चार्जेस जो है वो खुद ब खुद मूव करती हैं,
इस बात को समझिए इस एग्जाम्पल से। इसमें पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा है और हमने एक कनेक्टर लगा के रख दिया है, और अगर हम यहाँ पे इस कनेक्टर के द्वारा अगर हम पानी गुजारते हैं तो जाहिर सी बात है कि पानी हम क्या देखते हैं कि फ्लो करना शुरू कर देता है, वो भी अपने आप इस वेसल से लेकर के उस वेसल तक। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दूसरे वेसल की कहानी। दूसरे में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पूरा भरा हुआ है एंड दिस वेसल इज नॉट इन वॉल्यूम दैट मच, ओके, इट इज लिटिल बिट लेस देन द प्रीवियस कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी वाटर का फ्लो हुआ, लेकिन अब यहाँ पे अंतर क्या है, फ्लो तो दोनों में हुआ, तो रीजन क्या है, यहाँ पे जो फ्लो का प्रेशर था वो काफी बेहतर था, और यहाँ पे जो फ्लो का प्रेशर है वो गया तो पानी उस वेसल में थ्रू द कनेक्टर, लेकिन वो प्रेशर नहीं था, प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। और जो तीसरी कंडीशन है, यहाँ पे दोनों जो पानी का लेवल है वेसल के अंदर वो डिट्टो इक्वल टू है, एकदम जितना वॉल्यूम इसमें उतना ही वॉल्यूम इसमें है। तो यहाँ पे ना तो पानी इसका उसमें गया ना तो उसका इसमें आया, कहीं कुछ भी नहीं आया, सबके सब अपनी स्टेबल पोजीशन पर आएगा। तो अब यहाँ पर क्या था, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, और वो पॉइंट क्या है कि जो चार्जेस फ्लो होते हैं उनको पानी की तरह समझिए। ठीक है, ये हायर लेवल टू लोअर लेवल ट्रांसफर हो रहा है। चार्जेस में भी यही बात होती है, चार्जेस भी मूव करते हैं हायर लेवल टू लोअर लेवल। दुनिया में कोई भी चीज नीचे से ऊपर नहीं जाती है, ऊपर से ही नीचे आने वाली है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, ये है आपका हायर लेवल, यहां से फ्लो हुआ, यहां पे पोटेंसी ज्यादा थी, जाहिर सी बात है तो प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर करंट ज्यादा होगा, करंट अगर ज्यादा होगा तो फ्लो ऑफ चार्ज भी ज्यादा होगा। यहाँ पे करंट कम था तो फ्लो ऑफ चार्ज भी गया तो, लेकिन उतना प्रेशर भी नहीं था, कम गया। और यहाँ पे दोनों का दोनों वॉल्यूम समान था, इसका मतलब चार्जेस इक्वल थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये वही कंडीशन होती है जब आप कहते हैं क्या, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, ये वही कंडीशन है। जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हो जाते हैं तब चार्जेस फ्लो करते ही नहीं है, वो न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है। और फ्लो ऑफ चार्ज जब होगा ही नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी नहीं, वो दौड़ेगी नहीं। तो ये एक कंडीशन था जिसे आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। अब एक और एग्जांपल है आपके सामने जो दर्शाएगा पोटेंशियल डिफरेंस को ही, इसके बाद हम आएंगे सीधे डेफिनेशन पे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल यू इन फ्रंट ऑफ यू योर अ गुड एग्जांपल, and that example will relate from potential difference. Suppose that you are just standing in front of your friend and you have just joined your hand, or you have just given your hand in the hands of your friend, and your friend is just pulling you. So when your friend starts to pull your body just towards his direction, तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि आप खुद ब खुद एक फोर्स महसूस करते हो और आप उस फ्रेंड के आप करीब चले जाते हो। तो इसका रीजन आखिर था क्या, वो जाहिर सी बात है कि आप खुद ब खुद गए हो उसके पास, वो आपके पास नहीं आया, आपको सिर्फ पकड़ उसने खींच लिया है। ठीक है, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। और अब जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल पानी के बीकर में तो बड़ी आसानी से आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक सिटी की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हायर पोटेंशियल कौन होगा और लोअर पोटेंशियल कौन होगा, ये क्रिएट जरा सोचिए। दोस्त आपके पास नहीं आया है, उसने आपको पकड़ के खींचा है। दोस्त आपके पास नहीं आया है, आपको पकड़ के खींचा है। ये वही दोस्त है जिसने खींचा है। तो जो खींचने वाला है, जाहिर सी बात है कि हायर पोटेंशियल तो उसी की होगी। तो जो प्लस चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज नॉन एज हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज नॉन एज लोअर पोटेंशियल। इसलिए कहा जाता है कि जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं। उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। और अब हम इस कंडीशन में है कि हम डिफाइन कर सकते हैं पीडी को, इसको शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी बोलते हैं। तो आपका डेफिनेशन ऐसे जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in moving a unit charge from one place to the another, from one place to another point। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो चार्जेस मूव करते हैंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है, और
अब एक बात याद रखिए आप कि जो फोर्स है आपका, ये जाता है वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। मान के चलिए कि ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी, ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज था और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज था, और यू हैव जस्ट लेफ्ट दिस चार्जेस विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, ठीक है, आपने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, आपने इसे छोड़ के रख दिया। तो जाहिर सी बात है कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि इनमें ये अनलाइक चार्जेस से अट्रैक्शन तो होकर रहेगा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर ये मिल गए तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए सीधे दूसरी सूरत दिखाई देगी जिसमें वो फ्लो ही नहीं करने वाला है। तो आपने किया क्या, ये अट्रैक्शन क्रिएट ना हो इसके चलते आपने क्या किया कि आपने अट्रैक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाया, अट्रैक्शन के अपोजिट में आपने फोर्स लगाया, और तब जाकर के जब फोर्स लगा तो फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था ये यहाँ से ना रह के ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फोर्स इक्वल टू वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो जो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी तय हुई है, जाहिर सी बात है वो स्मॉल डी है, वही तो डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि अब आप कह सकते हैं कि आपने फोर्स लगाया है और बॉडी अपनी जगह से मूव की है, तो और वो भी फोर्स लगने के बाद और उसने कुछ डिस्टेंस भी तय किया है, तो जाहिर सी बात है कि आपने वर्क डन किया है। और इसी दम पे, इसी प्रोसीजर के ऊपर, इसी बेस के ऊपर ये डेफिनेशन आया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। उम्मीद है पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, और ये इसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव कह सकते हैं आप, अमाउंट ऑफ चार्ज मूव कह सकते हैं आप, दोनों शब्द का मतलब एक ही है। तो उम्मीद है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि जितनी भी फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनका पैमाना होता है, उनको मेजर भी करना पड़ता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। जाहिर सी बात है कि वर्क डन, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, तो हम चार्ज को डिनोट करते हैं किससे, क्यू से, लेकिन इसका यूनिट हमने क्या बताया था आपको, सही बोला आपने, कूलम। तो क्या गया इसका, जूल पर कूलम। और अगर हम इसका एक कंबाइंड फॉर्मेट अगर हम बात करें, तो अगर हम जूल पर कूलम को अगर हम एक वर्ड अगर देना चाहें तो वो वर्ड क्या है, वोल्ट, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपको स्टार्टिंग से ये मैंने बताया अभी तक, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और नहीं है, इसके बारे में आप बहुत बखूबी जानते हैं। वोल्टेज, ठीक है। तो अब बाकी है क्या, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। और अभी इलेक्ट्रिक करंट का एक और डिस्क्रिप्शन बाकी है हमारा, और ओम्स लॉ जो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो इन तीनों टॉपिक को बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा पाए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बी एट होम।